The big story, viewers, that we have for you is about a samosa scandal. Well, yes, you heard me right. I'm going to talk about a samosa scandal. And why it is a scandal, I'll tell you in a bit, because there was an inquiry. A report was also filed. Now, that usually happens if there is some kind of a scandal. Now, this samosa scandal has erupted in Himachal Pradesh after samosas that were meant for Chief Minister Sukhvinder Singh Sukhu during his visit to the CID office ended up being served to his security staff instead. Now, this goof-up, viewers, has snowballed into a massive controversy. So much so that a CID probe, believe it or not, has termed it an anti-government activity. Can you believe it, viewers? This is what is happening in a state like Himachal Pradesh. Himachal Pradesh has made headlines in the recent past over a number of issues, financial issues that the state is facing right now. Then we had the news of the toilet seat tax, and now we have a samosa scandal emerging from Himachal Pradesh. Well, reports are suggesting that the personnel involved in this goof-up have been accused of acting in an anti-government and anti-CID manner. Now, this was mentioned in the report that was eventually filed in this case after an inquiry. Now, this has become a very big political issue. BJP has picked this up. BJP is mocking Congress party's samosa saga, claiming that Sukhu Sarkar is not focusing on governance but on samosa, and the scandal proves Congress party's priorities in a state like Himachal Pradesh. Listen. कांग्रेस का हिमाचल में गवर्नेंस मॉडल तो देखिए, पहले टॉयलेट पर टैक्स लगाना और उसके बाद अब समोसे पर सीआईडी की इंक्वायरी, वो भी सरकार विरोधी कृत्य बताकर। जी हां, समोसे और केक मंगवाए गए थे, सीएम के लिए थे, गलती से उनके स्टाफ को परोस दिए गए। तो हिमाचल प्रदेश के पूरे प्रशासन का काम ये बचा है कि अब इसमें सीआईडी इंक्वायरी कराकर इसे एंटी गवर्नमेंट एक्ट बताकर इसमें जांच की जा रही है। समोसे ना मिलने के कारण सीआईडी जांच करवाई गई और इस जांच के बाद इसे सरकार विरोधी घटना बताया गया। अगर इतनी छोटी सी बात को लेकर सरकार इतनी गंभीर है तो हमें इनकी प्राथमिकताओं के बारे में पता चलता है। पिछले 2 साल से विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको ध्यान देना चाहिए विकास कार्यों की तरफ। हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी के पास अपने चीफ सेक्रेटरी को पैसे देने के लिए नहीं है। क्राइम रेट 8% बढ़ चुका है, परंतु मुख्यमंत्री और पूरी की पूरी सरकार इस बात में व्यस्त है कि समोसा किसने खाया है। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस पार्टी की प्रायोरिटीज क्या है। इनकी हद देखिए, अगर मुख्यमंत्री को दिया गया समोसा अगर उनके स्टाफ खा लेते हैं तो उसको एक एंटी गवर्नमेंट माइंडसेट भी कहते हैं। इससे ये समझ में आता है कि कांग्रेस पार्टी की गरीबों की प्रति सोच क्या है। और आज हिमाचल प्रदेश का बंटाधार इसीलिए करा जा रहा है कि सरकार ये ध्यान नहीं रख रही कि जनता की सेवा कौन कर रहा है। So, viewers, you heard the Bharatiya Janata Party, and now Times Now has accessed the letter copy. This 3-page letter of the inquiry goes into great detail about what really unfolded. And for more on this, let me straight away go across to my colleague Amita, who is joining us live with this letter's copy. Amita, I want you to tell our viewers what this inquiry really found. I mean, who really ate the samosa? It's unbelievable. Absolutely, Hina, and they've gone to the extent, to the depths actually, to find out that from where the boxes were brought in to the hotel, to the individuals who were handling it, and who exactly went ahead to serve those samosas and cakes to the Chief Minister's security staff. So this is going in great detail exactly when it comes to the Janch report, which goes on to say this is the Janch report, and as far as even the name of the individuals who are said to be involved, right from the bazaar, from लक्कड़ बाजार के माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के सीआईडी मुख्यालय आगमन के लिए कुछ खाने पीने की वस्तुएं लाई गई, उसका आदेश दिया गया, जिस पर उप निरीक्षक दीवान चंद ने एएसआई संजीव कुमार व एचएससी कमलेश चालक के उक्त सामान को लेने के लिए होटल भेजा गया, जिसमें ये सामान लेकर सीआईडी कार्यालय पहुंचे और इस सामान में 3 बॉक्सेस जिसमें समोसा व केक बताया जा रहा है और इन तीनों बॉक्सेस में एसआई दीवान चंद द्वारा आईजीपी और इंस्पेक्टर साहब की सूचना देने के
बताया गया जिन्होंने एसआई दीवान के आदेश पर ये सामान इंस्पेक्टर पूजा को दे दिया गया. So you can see even when it comes to the officials who were handling these boxes, they have been highlighted in this report, which Right. further goes on to say कि जांच बताया जा रहा है कि तथाकथित तीनों बॉक्सेस होटल लाए गए जिसमें मौजूद खाने पीने की जो वस्तुएं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के लिए वो जानकारी केवल एक एसआई को थी और जिसने इसके बावजूद उपरोक्त तीनों बॉक्सेस को सीएम साहब के आने के बाद इंस्पेक्टर पूजा द्वारा इसके पास भेजे गए और इसकी मौजूदगी में ये बॉक्सेस खोले गए, वे इसमें मौजूद सामान को उसके बाद बांटा गया. सो दे आर नाउ पॉइंटिंग आउट एज फार एज द इंस्पेक्टर हु इज सेड टू बी इन्वॉल्व्ड कि तीनों बॉक्सेस के बारे में किसी भी उच्च अधिकारी से पूछे बगैर ये सामान एमटी सेक्शन को सौंपा गया. अतः जांच रिपोर्ट सेवा में ये प्रेषित की गई है. सो दिस इज एज फार एज इवन द इंडिविजुअल्स हु आर सेड टू बी इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग ऑफ दोस बॉक्सेस, हिना, बिलीव इट और नॉट, दे हैव बीन नेम्ड इन दिस जांच रिपोर्ट. Right. Amita, thank you very much for taking our viewers through all the details of this report to find out who ate the samosas, where did it come from really. And now we are getting first reaction from Himachal Pradesh Chief Minister as well. He remains silent on this entire samosa gate. Sukhu is seen there evading Times Now's questions. Take a look at the sequence. सर, भाजपा आगे जा रही है कि आप समोसे की मदद करें. धन्यवाद. सर, भाजपा आगे जा रही है कि आप समोसे की मदद करें. धन्यवाद. Let's now go across to my colleague Manoj, who is joining us live for more on this. Manoj, क्लियरली चीफ मिनिस्टर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है समोसा स्कैंडल को लेकर. भारतीय जनता पार्टी ने तो इसे एक बड़ा मुद्दा बना ही लिया है, लेकिन ये पूरी कहानी को देखकर मुझे जसपाल भट्टी का फ्लॉप शो याद आया 30 साल पहले जो आता था, जिसमें स्पेसिफिकली समोसे और चाय कहां प्लेस होंगे, कितने आलू होने चाहिए उनमें, उसको लेकर मीटिंग्स होती थी. तो कुछ ऐसा ही हमें हिमाचल प्रदेश में सरकार में होता हुआ नजर आ रहा है अब. जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया. कुछ इसी तरह की बातों का जिक्र उसमें होता था और वो अब हमें धरातल पर नजर आ रहा है. देखिए, शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा कि समोसों के लिए समोसे कहाँ गायब हो गए, किसने खाए, कहाँ से लाए गए थे, इसके लिए कोई सरकार सीआईडी की जांच कराएगी. आप सोचिए, कोई छोटी मोटी जांच नहीं की गई है, यह सीआईडी के स्तर पर जांच की गई है. बाकायदा रिपोर्ट तैयार की गई है. रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास है, वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कितने विस्तार से, कितने डीपली इसको जांच की गई है, कितने गवाहों के बयान इसमें दर्ज किए गए हैं और पता लगाने की कोशिश की गई है कि मुख्यमंत्री के लिए आज जो समोसे आए थे वो आखिर कहां गए, कौन उनको खा गया. ऐसा नहीं कि कोई बाहर का कोई अपरिचित व्यक्ति खा गया. जांच इस बात की गई है कि वो मुख्यमंत्री तक समोसे पहुंचे क्यों नहीं. आरोप यह है कि जो समोसे थे, केक थे, वो मुख्यमंत्री की सुरक्षा के में जो कर्मी लगे हुए हैं, पुलिसकर्मी, उन तक पहुंच गए. तो इसको लेकर अब काफी हंगामा मचा हुआ है. आप देखिए, हिमाचल प्रदेश की राजनीति, हिमाचल प्रदेश सरकार को लेकर तमाम सवाल उठते रहे. फाइनेंशियल क्राइसिस यहाँ पहले से है, कांग्रेस में भी क्राइसिस पहले से है, पूरी इकाई भंग कर दी गई है. लेकिन इन तमाम मुद्दों को पीछे छोड़ते हुए समोसा पॉलिटिक्स अब ऊपर आ गई है. समोसों की जांच की जा रही है. तो बड़ा हास्यास्पद भी है, लेकिन बेहद गंभीर भी, और दिखाता भी है कि सरकार की आखिरकार प्रायोरिटी हिमाचल प्रदेश में क्या है. क्या समोसे और केक की जांच कराना ही प्रायोरिटी है, या जो दूसरे बड़े इशू हैं जिनको सुलझाना भी बाकी है, वो सरकार की प्रायोरिटी है. जी बिल्कुल मनोज, आपने सही सवाल उठाया है, क्योंकि ये पूरा मुद्दा इसलिए आज हम उठा रहे हैं क्योंकि इससे दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश की जो सरकार है, कांग्रेस की जो सरकार है हिमाचल प्रदेश में, उनकी दरअसल प्रायोरिटीज क्या है. मनोज, रिक्वेस्टिंग यू टू स्टे ऑन विद अस. देयर सम मोर ब्रेकिंग अपडेट कमिंग इन एट दिस पॉइंट इन टाइम. 5 cops have been served the notice in the Samosa Gate. That's the big news that we are breaking for you. The cops have been given 10 days to file a reply. Further action will be taken only on the basis of the answers given by these policemen. That's the big news that we are getting for you. 5 cops served notice in Samosa Gate. Let's go across to my colleague Manoj, who continues to be with us at this point in time. Manoj, 5 पुलिस अफसरों को जानकारी हमें मिल रही है कि नोटिस दिया गया है, और क्या जानकारी आप हमें इस मामले पर दे सकते हैं? जी बिल्कुल. देखिए, ये जो नोटिस की बात आ रही है, ये बताया जा रहा है, जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि जिनकी जिम्मेदारी थी रेडिसन होटल से समोसा लाने की, जिनकी जिम्मेदारी थी
उनको सुरक्षित रखने की। जो जांच रिपोर्ट में भी जिन लोगों का जिक्र किया गया है, आप अगर अंतिम पैरा पढ़ेंगे तो उसमें जो जिन लोगों का नाम है बताया जा रहा है कि उनको बाकायदा नोटिस दिया गया है। तो आप देखिए, सिर्फ जांच तक बात सीमित नहीं है, यही मामला नहीं रुकेगा, इस पर एक्शन भी होने जा रहा है। और अक्सर हम कई बड़े मुद्दे हो जाते हैं तो सरकार से सवाल पूछते रहते हैं कि कब होगा एक्शन, कब होगा एक्शन। तो अब इसमें तो बिना पूछे ही एक्शन भी शुरू हो गया है। तो आप देखिए कितनी गंभीर है सरकार। हिमाचल प्रदेश की समोसे की जांच हो रही है और जांच के बाद रिपोर्ट आ गई है और अब एक्शन की भी तैयारी शुरू हो गई है। जी, लेकिन इस पूरे मामले पर चीफ मिनिस्टर ने चुप्पी साधी हुई है। नो रिस्पॉन्स देयर कमिंग इन फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर एट ऑल। रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन विद अस, Manoj. Let me now go across to my colleague Niyamika as well, joining us on the broadcast for more on this. Niyamika, good morning. What is it that the Congress leaders here in the national capital are saying about this entire samosa gate? Well, good morning, Hina. And the response which is coming in on the part of the Congress party is that there is no controversy regarding this entire issue. As just now we have also spoken to the Congress leader, Mr. Sandeep Dixit, in which he has said that there is nothing wrong in such kind of investigation because this is something which is related to the security of a chief minister, what he needs to eat, what he is not getting to eat. That is basically a question of security, and that's the only reason why such kind of investigation has taken place. But this entire issue is snowballing because we have seen that how the BJP is reacting over the same. BJP is basically saying that the Congress party's priorities is something different because rather than working on the ground, rather than thinking about the welfare of the people of Himachal Pradesh, they are more concerned about the samosa which is being served to the staff of the chief minister, and that is the only reason why such kind of investigation has taken place and action has also been taken against the officers there. And for that reason now the BJP is saying that on one side the Congress party makes a lot of promises during the assembly elections, but when they come to power they do not implement it on the ground, as their priorities is about the samosa party of the chief minister of Himachal Pradesh. Right, Niyamika, stay with us. Let me go back to Manoj, who continues to be with us as well. Manoj, अभी सब लोग ये भी जानना चाहते हैं कि इंक्वायरी हुई है, एक्शन लिया गया है, इसका मतलब कुछ तो खास जरूर होगा इन समोसों में जो एक 5-स्टार होटल से मंगवाए गए थे। हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए कि लगभग एक समोसा कितने का आता है जहां से मंगवाया गया था, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत ही स्पेशल समोसे थे जिसकी वजह से पहले इंक्वायरी हुई, उसके बाद अब एक्शन भी तुरंत लेने की बात हो रही है। देखिए, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है, जो समोसे जरूर बहुत खास रहे होंगे, बहुत महंगे भी रहे होंगे, क्योंकि आमतौर पर आप देखिए समोसा अगर बाजार में जाएं, हिंदुस्तान के किसी भी देश, किसी भी राज्य में चले जाएं, किसी भी प्रदेश में चले जाएं, तो आमतौर पर समोसे की कीमत 15 से 20 रुपए है। लेकिन अगर 5-स्टार होटल से समोसा आएगा तो जाहिर सी बात है कि उसकी कीमत भी ज्यादा रही होगी। लेकिन कीमत से ज्यादा वो किसके लिए मंगवाए गए थे? वो मंगवाए गए थे हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए। और मंगवाए किसने थे? पुलिस वालों का कार्यक्रम था, सीआईडी का कार्यक्रम था, वह एक कार्यक्रम में पहुंचने थे मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री को। लेकिन बात यहां पर बिगड़ गई कि जो समोसे, इतने खास समोसे, इतने महंगे समोसे एक 5-स्टार होटल से मंगवाए गए थे, वो जिसके लिए मंगवाए गए थे उस तक नहीं पहुंचे, यानी कि मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचे। और यही बात सरकार को नागवार गुजरी, यही बात सीआईडी को नागवार गुजरी, और उसके बाद जांच शुरू हुई, एक्शन की भी तैयारी है। और अभी हम मुख्यमंत्री को भी सुन रहे थे, सवाल उनसे पूछा गया समोसों को लेकर तो वो टाल गए, धन्यवाद कह दिया। लेकिन मुख्यमंत्री भी समझ रहे हैं कि बात कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, शायद इतना जो हंगामा है इसकी उम्मीद नहीं थी। जी, All right, Manoj as well as Niyamika, appreciate both of you for joining us with all of those details. We'll keep coming back to you for more on this samosa gate, which is just getting bigger every single hour. We'll slip into a very